یاد رکھو آج کل جو جدید فرقے بنے ہیں نا دنیا میں، نئے نئے اسکالر پیدا ہوئے ہیں اور نئے نئے ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں اور نئے نئے علامہ پیدا ہوئے ہیں، وہ اس قسم کی باتوں میں شبہات پیدا کر رہے۔ دیکھو جی آج یورپ تو کافر ہے، وہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتے، لیکن دیکھیں وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہودی کافر ہے لیکن وہ کہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو معنی کو سمجھیں، بات کو سمجھا کریں کہ ہماری اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری اطاعت میں کمی ہے۔ جب صحابہ حضور کی صحیح اطاعت کرنے والے تھے، ایمان سے کہیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تاریخ انگریزوں نے لکھی ہو، یہودیوں نے لکھی ہو، نصرانیوں نے لکھی ہو کہ صحابہ کو اللہ نے پوری دنیا میں عزت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ یعنی ان کے پاس کیا تھا؟ یعنی آپ انداز ایمان سے کہ ان کے پاس میزائل تھے، کوئی توپ خانہ تھا، ان کے پاس بختر بند گاڑیاں تھیں، ہوائی جہاز تھے، کوئی لڑاکا طیارے تھے، کوئی ایٹمی آبدوزیں تھی، کچھ بھی، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، اور کسی کے پاس وہ بھی نہیں تھے۔ اور لڑائی کے لیے کیا تھا؟ تلوار تھی، تیر تھا اور نیزے، اور وہ کسی کے پاس وہ بھی نہیں تھے۔ اچھا کھانے کے لیے بھی ان کو کوئی طاقتور غذا ملتی تھی، وہ بھی نہیں تھی، ایک کھجور کا دانا یا 2 کھجور کے دانے۔ اور انہوں نے اس ایمان کی قوت سے اور اطاعت محمد مصطفیٰ سے بڑی بڑی طاقتوں کو روک ڈالا۔ دیکھیں نا اس دور میں سپر پاور جو ہے وہ کسرا تھی یا روم۔ فارس ان کا بادشاہ کسرا کہلاتا تھا اور روم اس کا بادشاہ ہرقل تھا۔ یہ صحابہ کے زمانے میں اس وقت دنیا کی عالمی طور پہ سپر پاور تھی، لیکن صحابہ نے ان کو پاؤں کے نیچے رونق ڈالا۔ ایسا بھی ہوا کہ 60,000 عیسائی ہیں اور حضرت خالد کے ساتھ 60 آدمی ہیں، اور حضرت خالد فرماتے آؤ ان پہ حملہ کریں۔ انہوں نے کہا حضرت خالد خودکشی والی بات ہے کہ ہم 60 آدمی 60,000 میں ہم بھائی فتح شکست کا تعلق قلت اور کثرت سے تو نہیں ہوتا۔ فتح کا ہم حنین میں زیادہ تھے لیکن ہار گئے، اور بدر میں تھوڑے تھے اور جیت گئے۔ تو قلت و کثرت تو فتح کا ذریعہ نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت فتح کا ذریعہ۔ اللہ اکبر کہہ کے حملہ کر دیا 60,000 پہ۔ کوئی سوچ نہیں بلا، یعنی 60,000 آدمی اگر مل کے پھونک بھی مارتے تو 60 آدمی توڑ جاتے۔ ابو عبیدہ بن الجراح اس وقت کمانڈر ان چیف تھے اور خالد کے ماتحت لڑ رہے تھے۔ وہ خواب سوئے ہوئے ہیں، خیمے میں خواب میں دیکھتے ہیں کہ حکم ہوتا ہے کہ ویسا تم سو رہے ہیں اور خالد دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ حضرت ابی عبیدہ اٹھے، دوڑے اور فوج کو تیار کیا، اچانک اور جا کے گھیرا ڈالا۔ تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ہمارے مسلمان کدھر ہیں۔ تو وہ تو اس وقت ہمیں پتہ لگتا تھا جب مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے کہ یہ ہمارا مسلمان ہے۔ تو لشکر آ گیا اور اللہ کی رحمت سے جناب وہ 60,000 شکست کھا گئے اور حضرت خالد کامیاب ہو کے فاتح بن کے باہر نکل آئے۔ 60,000 صحابہ کہتے ہیں تلواریں چمکتی تھی جیسے اندھیرے میں کوئی چمک ہے، لیکن پتہ تو نہیں لگتا تھا نا کون ہے۔ کیا وجہ تھی آخر؟ بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے چند پیپر بھی یا اونٹوں کے چرانے والے؟ وہ بات تھی اطاعت محمد مصطفیٰ۔ حضرت عمر بھی آ رہے تھے جب آپ خلیفہ بن گئے تھے، تو جب یہ وادی جموم ہے نا، وادی فاطمہ سے پہلے جب یہاں آئے ایک جگہ پر تو آپ نے قافلہ بھی روکا، آپ اونٹ سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور کافی دیر بیٹھ کے روتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ صحابہ نے پوچھا امیر وہی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں اللہ کا شکر کر رہا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے کہ ہمیں اونٹ چلایا کرتا تھا، آج میں امیر المومنین بن کے گزر رہا ہوں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ تو یاد رکھو کہ یا تو کہنا جی کوئی مثال ہی نہیں جی، بھائی جب تک مسلمان تھے، جب تک مومن تھے، کوئی کفر کی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
हवाओं पे उन्होंने हुकूमत की, दरियाओं पे उन्होंने हुकूमत की। एक सहाबा के चंद आदमी जो है वो एक बादशाह के पास गए, सहाबा दरिया के इस तरफ थे और बादशाह का मुल्क उस तरफ था, तो 3 आदमी या 4 आदमी भेजे गए वफद बना के कि जाके बादशाह को पैगाम दें। वो आ गए बेचारे, और उनका क्या जनाब, बोरियों की सलवार और बोरियों का कमीज पहना हुआ और तलवारों पे पुराने कपड़े लपेटे हुए, उनके रखने के लिए केस भी नहीं है। लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, दुश्मन की फौज ने क्या बना, हम तो आपके बादशाह को ऐसे मिलने जा रहे हैं, मैं क्यों पकड़ रहे हो भाई, उन्हें कहा ले जाओ। जब बादशाह के पास लाए तो वो इस अंदाज में चलते गए कि वो तलवारें हाथ में थी ना, तो उनका नीचे से कोई केस तो था नहीं, उनकी कालीनों को चीरता गया बादशाह की तरफ, उसके दरबार तक सारी कालीनें चीर डाली उनकी। बादशाह ने देखा, उसने कहा क्या बात है, क्यों आए हो? उन्होंने कहा जी हम वफद हैं, हमारे कमांडर इन चीफ ने आपके पास भेजा है और 3 बातें, अस्लिम तस्लिम, मुसलमान हो जाओ, हमारे भाई हो, फिर आपका और हमारा कोई झगड़ा नहीं है। ये दूसरी बात ये है कि जिजिया अदा करो, हमारे माँ का हाथ बन के रहो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, हमें टैक्स दो बाकायदा। और तीसरी बात यह है कि अगर तुम ये दोनों बातें नहीं मानते हो ना, तो फिर तलवार मैदान में फैसला करेगी। बादशाह हंसता रहा, उनका ये कौन है? उसने अपने वजीर को बुला के कहा कि एक टोकरा मिट्टी का भर के वो ले आओ। वो टोकरा लाए तो बादशाह ने उनका जो खत था गवर्नर का मुसलमान का वो फाड़ डाला और कहा ये टोकरा जो है, ये मिट्टी का टोकरा जाके अपने बादशाह को दो, उसके मुंह में मारो, हमारी तरफ से यही जवाब है, हम मुकाबला करेंगे मैदान में। तो साहबा ने वो टोकरा लिया, सर पे रखा और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह का ये पता नहीं इनका दिमाग खराब है, मैं इनको मिट्टी मार रहा हूँ, जलील कर रहा हूँ, कहते अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा हुकूमत मिट्टी पे की जाती है, तुमने अपने मुल्क की मिट्टी हमारे हवाले कर दी है, इंतजार करो कल हमारे। बादशाह बड़ा मुतमईन था कि दरिया कहां से अबूर करेंगे, ना पुल है न किश्तियां हैं। कमांडर ने हुक्म दिया कि अल्लाह का नाम लेके घोड़े डाल दो दरिया में। दरिया भी उसके हुक्म पे चलता है और हम भी उसके हुक्म के लिए लड़ रहे हैं, मुल्क फतह हो गया। मेरा भाई, हम में वो इताअत और फर्मा बरदारी नहीं है। हम हैं जैसे कोई बंदा हो ना, बड़ा खूबसूरत लेकिन एक आंख ना हो, कहते काना है। बंदा बड़ा खूबसूरत हो और एक टांग ना हो, कहते लगड़ा है। और बंदा बड़ा खूबसूरत हो और दोनों आंखें ना हो, कहते हमारा इस्लाम इसी तरह है। नमाज पढ़ता है तो माशाअल्लाह सूद भी खाता है, साहब हज पे आता है माशाअल्लाह, दाढ़ी भी उड़ाता है, सिगरेट भी पीता है, हराम भी खाता है। हमारा इस्लाम जरूर अलग रहा है, वो तरक्की कैसे हो। इसीलिए हजरत उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने दौर में इमाम इनकलाब थे, तो मेरे वालिद साहब के भी उस्ताद थे, तो उन्होंने एक जगह अपनी किताब में तफसीर कुरान में लिखा है कि इस्लाम में कुरान ये कहता है कि एक वक्त आएगा जब पूरी दुनिया पे इस्लाम का गलबा होगा, तमाम अदियान पे तेरे दीन को हम गालिब कर देंगे। ये कुरान है और फरमाने रसूल है कि कोई घर पूरी दुनिया में नहीं बचेगा, लम यबका बैतुन मिन वदरिन वला वबरिन इल्ला अदखलहुल्लाहुल इस्लाम बिइज्जत अजीजिन व ज़िल्ल ज़लीलिन औ कमा क़ाल। अज़ुन में घर पक्का हो या कच्चा हो या खेमे का घर हो, कोई नहीं बचेगा मगर अल्लाह इस्लाम को उसमें दाखिल करेगा, इस्लाम दाखिल होगा। वो फरमाते जब मैं ये हदीसें पढ़ता था गलबे इस्लाम की और फिर अपने एशिया के मुसलमानों पे नजर डालता था तो मैं हैरान होता था कि ये कौन गलबा लेगी, जिनका हाल ये है कि ये तो अभी तक अपनी शादियों पर भी वो हिंदू की रस्में अदा करते हैं, वही सुर्ख धागे बांधते हैं,
लोहे का बैत शौहर को पकड़ाते हैं, उसको घोड़े पे बिठाते हैं जो कभी गधा पे भी न बैठा हो, उसका वहां आते आते आधी जिंदगी खत्म हो जाती है कि अब गिरा के कब गिरा। और ये अपनी औरतों को आटे के उपटन बना के उसके बदन पे मालिश करती हैं कि रंग अच्छा निकलेगा। और ये सारी काफिरों की और घोड़े की लगाम रखती हैं उसके बिस्तर के नीचे कि ये लड़की जो है शौहर को लगाम दे के चलाएगी, उस पर गालिब रहेगी। फिर ये कोई निंद्रा है, कोई सलाम के पैसे हैं और ये जहीज है, ये क्या लानतें हैं सारी यहूदियों की और हिंदुओं की। तो मैंने कहा ये कौम कैसे फतह कर सकती है। कहते हैं कि फिर मैं रशिया गया, यूरोप गया, बाहर के मुल्कों में गया। मैंने वहां जाके जब देखा और रिसर्च की, तहकीक की, मैं इस नतीजे पे पहुंचा एक वक्त आएगा जब अल्लाह पूरे यूरोप को और सारी दुनिया को इस्लाम में दाखिल कर देंगे। और जब वो बड़े लिखे लोग इस्लाम में आएंगे वो गलबा दीन का जरिया बनेंगे, दीन गालिब हो जाए। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर ईसा आपकी मौत से पहले पहले सब आप पर ईमान लाएंगे, तो ईसा इस्लाम उतरेंगे, दीन का गलबा होगा, उस वक्त ये सारे मुसलमान हो जाएंगे, वो इस्लाम के गलबे का बायस बनेंगे। हम तो माशाअल्लाह हमारा इस्लाम तो बड़ा मजेदार है ना जी कि 12 रबीउल अव्वल को मिलाद बना लो, 11 शरीफ को दूध तकसीम कर लो, और उसके बाद ये है कि जब कोई मर जाए तो कुल शरीफ तीसरे दिन, और 7 जुमरातें, एक 40वां, और कुरान मुर्दे पे फेर के हीला इसकात करके सारे गुनाह बख्शा के कब्र में डाल दो। और उसके बाद ये हमारा दीन है और ये हमारा मजहब है, ये हमारा ईमान है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। शिया के यहाँ कूडे हैं और हमारे यहाँ 11वीं शरीफ है, वो ताजिया शरीफ निकालते हैं, हम भी हजूर पाक की विलादत का जुलूस निकालते हैं और झंडे उठाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वला नक़ूलु इल्ला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ऐसी कौमें कभी फतह नहीं कर सकती, याद रखो। ये कौमें जो है ना वो बाकायदा आपकी तारीख में है कि जब वायसरा उस वक्त इंडिया था ना, पूरा हिंदुस्तान था, तो वायसरा जब आया ना लाहौर, इत्तेफाक से 10 मुहर्रम का दिन था, तो उसने देखा कि सारी सड़कें भरी हुई हैं, लोगों ने काले कपड़े पहने हुए हैं और सीने पे मार रहे हैं, कोई मुंह पे मार रहे हैं, कोई जंजीरें मार रहे हैं। तो उसने अपने एडीसी से पूछा कि क्या इनको मेरा यहाँ आना गवारा और मंजूर नहीं है, ये इसलिए एहतजाज कर रहे हैं, मैं वापस आ जाता हूँ, बस इनको कहो क्यों मारते हो अपने आप को। उसने कहा सर ये आपके खिलाफ एहतजाज मुजाहरा नहीं कर रहे, इनका एक हीरो है हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये उनकी शहादत पे गम कर रहे हैं और गम उनकी यादगार मना रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा हुसैन इब्न अली इनका जो हीरो था वो यहाँ लाहौर में शहीद हुए थे? उन्होंने कहा नहीं हजरत वो इराक में शहीद हुए थे, करबला में। उन्होंने कहा कब? ये 2-4 दिन की बात। का नहीं जनाब 1200 साल की बात है। उन्होंने कहा चलो सर, जो कौम 1200 साल से अपने हीरो का मातम कर रही है वो कभी दुनिया में कामयाब नहीं, फिर अभी तक मातम से फारिग नहीं हुए। ठीक है मिट्टी लड़ेंगे हमारे साथ, और कहा चलो फिर हम इनको ठीक करेंगे। और वाकई 250 साल तक अंग्रेजों ने हमें ठीक किया, सबको नीचे लगा के रखा, क्या पीर, क्या मौलवी, क्या सियासतदान, क्या बड़े, क्या छोटे, क्या राजे, क्या महाराजे, सब उनके बूट पालिश होते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसलिए आज अपना काम है कि वो इताअत नहीं है,